داستان بیان کرنے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کل رات کراچی ایئرپورٹ کے باہر ریاستی خفیہ اداروں FIA اور سندھ پولیس نے بحیثیت شہری میرے تمام بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا اور ہمارے ساتھ ناقابل بیان سلوک کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی مشہور میگزین ٹائم نے مجھے اس سال دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست میں شامل کیا اور مجھے نیو یارک میں ٹائم ایونٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے کل رات میری پرواز کراچی سے نیو یارک کے لیے تھی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر تمام پروسیجر مکمل کرنے کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے مجھے سفر کرنے سے روک دیا۔ جب میں نے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کی تو FIA کے ذمہ داران وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بغیر کسی قانونی وجوہات کے مجھے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ روکے رکھا گیا۔ جب پرواز ٹیک آف کر گئی اور ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو FIA کے خاتون افسر نے میرا پاسپورٹ لیا اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت تک میں ان سے بات کرتی رہی، تب جا کر 1 گھنٹے بعد میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا گیا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر دوبارہ ریاستی خفیہ اداروں اور سندھ پولیس کے اہلکاروں نے ہماری گاڑی روکی، جس میں میں، سمیدین اور ہماری ایک اور خاتون دوست موجود تھی۔ گاڑی کو روکتے ہی انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو گاڑی سے نکالا اور اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی کی چابیاں نکال کر گاڑی کو بلاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے کھول کر ہماری سیٹ کے نیچے تلاشی لی، مکمل طور پر گاڑی کی چھان بین کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں گاڑی سے باہر نکال دیا، ہمارے دوپٹے کھینچے گئے، ہمیں گالیاں دی گئی اور شدید ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پاسپورٹ، موبائل اور آئی ڈی لے لی۔ ہم ایک بچے کا انتظار کھڑے تھے۔ جب وہ گاڑیاں آئی، ان میں موجود افراد نے ہمیں مزید ہراساں کیا اور ہم نے کو غیر محفوظ سمجھ کر دیوار ہو کر ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک اذیتناک اور تکلیف دہ لمحہ تھا کہ اس ملک میں ہمیں محض انسانی حقوق کا کارکن اور بلوچ ہونے کی بنا پر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ قابل احترام صحافی حضرات، کل جس طرح مجھے سفر سے روکا گیا اور ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریاست پاکستان نے ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور یہاں ہمارے لیے کسی بھی قسم کی انسانی حقوق موجود نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس USA کا ویزا اور ایک بین الاقوامی میگزین کا دعوت نامہ تھا، لیکن کراچی میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ نے پر مجھے 5 گھنٹے روکا گیا، سفر سے منع کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور میرا موبائل فون، پاسپورٹ اور گاڑی کی چابی بھی لے گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ لوگ عام بلوچ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہوں گے۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست اور اس کی تمام اداروں کو واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے ہم نہ تو خاموش ہوں گے اور نہ ہی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز اٹھانا بند کریں گے، بلکہ اس طرح کے اقدامات سے ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوگا اور ہم مزید منظم ہو کر بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں انسانی حقوق کی تمام ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ کل ہمارے ساتھ ہونے والے واقعے سمیت بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر ریاست پاکستان کو جواب دہ بنائیں اور بلوچ قوم کی بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ وہ بات ہی تھوڑا سا پھر کر دیں کیونکہ حالیہ جو حملہ ہوا ہے اور اس کا اقدام بھی ایک مندر سامنے بیٹھے رہے، وہاں کے صحافی حضرات نے بھی ہمیں تھریٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے اور مجھے افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ اس چیز پر آپ میں سے کسی نے بات نہیں کی۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مسائل ہیں، PTM پر بھی پابندی لگائی گئی ہے اور گزشتہ 2 دنوں سے میرے ساتھ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ماحول ہے، آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اور پاکستان میں جو ایک عام انسان ہے، عام
وہ جو زندگی گزار رہا ہے آپ اس کی مذمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہم مظلوم قومیں ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کا سوال کرنا آپ کے خود کے ساتھیوں میں گیان بڑے سوالیہ نشان ہے. ہم اس سوال کا جواب بار بار نہیں دیں گے, ہم بالکل بھی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ ہماری رائٹ اور اس کو بالکل ختم کرتا ہے. اور ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ہم نے ہمیشہ اپنی اس کولیپس سوسائٹی کا الزام پاکستانی فورسز اور ایجنسیز کو دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں, جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی, ان پر ہم نے کبھی کوئی الزام عائد نہیں کیا. جو حق کو حق نہیں بولتے ہیں, غلط کو غلط نہیں بولتے ہیں اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, اس کی وجہ, اس کولیپس سوسائٹی کی وجہ یہی ہے. آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, جس طرح صرف میری پہچان یا سمیع جب میری پہچان یہ بلوچی کپڑے, اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا, اس کی وجہ سے جس طرح تمام گاڑیاں جا رہی تھی اور صرف ہماری گاڑی کو روکا گیا, جس طرح پولیس اور جب یہاں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس جگہ میں ہو سکتا ہے جہاں میڈیا ہے, جہاں دنیا موجود ہے, تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں کرنٹ اسٹیٹ کتنے جگہوں پر لاپتہ افراد کی لاواقی خطرناک کے بیٹھے ہیں. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ بلوچستان میں گزشتہ ایک مہینے سے کتنی مذہب شدہ لاشیں پھینکی ہوئی ہیں. میں آپ کو لسٹ دینے کے لیے تیار ہوں, میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں, کہ خدا رہا یہ مذائقہ کے سوالات ہم سے نہ پوچھے. ہم نے اتنا جگر ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جھیل لیں گے, اور ہم جھیلنے کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم روکیں گے نہیں. ہماری تحریک کو تقویت اور اس بلوچ ماں نے دی ہے, اور اس عورت نے دی ہے, اور اس بلوچ فرزے نے دی ہے, جو اپنی زمین میں صرف اور صرف اپنی جینے کا حق چاہتا ہے. اور وہ چیز اتنی بڑی ہے, وہ ہمیں اتنی طاقت دیتی ہے کہ آپ کے یہ سوالات ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے. اور یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے کچھ عرصہ قبل جو ہے موبائلوں کو جانے سے روکا گیا تھا, اس کے فوراً بعد جو ہے جلدی کرو بھائی آگے بڑھو, وہ کورٹ چلی گئی کہ عدالت سے انہوں نے چھٹی لے لی. اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے, تو آپ عدلیہ جا رہی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل, میں عدالت کی سے رجوع ضرور کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا پاسپورٹ اور میرا موبائل فون ابھی بھی سندھ پولیس کے پاس ہے, اور اس کے لیے بھی میں FIR درج کرنے چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھے FIR نہیں کرے گی, اور اس کے خلاف میں عدالت کے پاس ضرور جاؤں گی. ہم جو جدوجہد لڑ رہے ہیں, ہم ان تمام اداروں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہو چکے ہیں, جو اپنا اختیار کھو چکے ہیں, جس سے عمارتیں بھی ہیں, جس کے اندر وہ اختیار جو پورے ہیں وہ نہیں بچے. تو ہم ضرور عدالت سے ریویو کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت ضرور ایک ذمہ دار ستون ہونے کی وجہ سے ایک اسٹیٹ کا اس پر ضرور اختیار دار ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلہ ضرور کرے. کارن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کل جب آپ ایئرپورٹ پر موجود تھی اور یہ سب واقعہ ہو رہا تھا, آپ اس وقت سے حکومت اور بلاول بھٹو کو خاطب کر کے کہا تھا کہ آپ اس صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایئرپورٹ کے اندر جو FIA کر رہی ہے وہ تو ایک وفاق کا معاملہ ہے, لیکن جو ایئرپورٹ کے باہر آپ کے ساتھ جس طرح سے سلوک ہوا, اور وہ بھی آپ نے وہاں پر پوسٹ کیا, کیا اس وقت سے لے کر اب تک سے حکومت کی جانب سے کسی بھی شخص نے آپ سے رابطہ کیا اور اس واقعے کی مذمت کی؟ جی بالکل بھی نہیں. سب سے پہلی بار سندھ پولیس کو کس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ صرف ایک گاڑی جس میں 3 خواتین بیٹھی ہیں جائیں, انہیں ہراساں کریں, جائیں ان کو تھریٹ کریں اور ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو جانوروں کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. تو اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, اور ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جو منسٹر صاحبان ہیں, لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. اچھا یہ بتا دیں سرکار کے شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئین میں رہتے ہوئے فیصلوں کی بات کرتے ہیں, اور یہ اس ملک کے عوام کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر ٹائم میگزین نے آپ کو 100 طاقتور ترین خواتین میں شامل کیا ہوگا. تو کیا ایسے مضمرات ہوتے, کیا ایسی بات ہوتی کہ آپ کو جانے نہیں دیا گیا, کیا اس کے پیچھے کیا مضمرات ہوتے؟
देखिए हम भी यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं और बलूच का हर बच्चा पैदा होते साथ ही उसे बोलता है कि मेरी जमीन में हजारों साल से यहाँ पे आबाद हूँ और मसाइल मेरे हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आप मेरे जीने का इख्तियार मुझसे कैसे छीन सकते हैं। और हम यही कहते आ रहे हैं कि हम उस आइन और उस कानून की शायद बालादस्ती की बात कर रहे हैं जिसका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, जो लाकानूनियत लाई गई है इस सोसाइटी में, जो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स है। कोई एक राइट मुझे बताए, कोई एक तबका मुझे बताए, बलोच को छोड़ दे, कोई एक तबका मुझे बताए जिसके राइट्स उसे मिल रहे हैं, उसे नहीं मिल रहे हैं। और हमें रोकने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बलूचिस्तान में जो इनके जंगी जराइम है वो कभी एक्सपोज ना हो सके। बलूचिस्तान में मीडिया पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी है, बलूचिस्तान में अगर आप एक कुतुब मेला भी रखना चाहते हैं उसके लिए भी कर्नल साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। बलूचिस्तान में ऐसी जगह भी है जहाँ लाइब्रेरीज की किताबें भी कोर्ट जो है ना डिसाइड करती है कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी किताब आएगी या नहीं आएगी। तो वो जो कॉलोनिज्म है उसको एक्सपोज करने से वो डरते हैं और हम उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमारे पास बलूचिस्तान की वो कहानियां हैं, वो दर्दनाक कहानियां हैं, उसको बयान करने के लिए वक्त शायद हम नहीं कर सकते हैं। जिम्मेदारी से हम अफसोस होता है आज भी कि बलूचिस्तान की वो कहानियां ये हमारी नाअहली है या ना गैर जिम्मेदारी है कि हमने कभी उनको मीडिया के सामने या दुनिया के सामने तरह नहीं ला सके। अगर हम वही ला दें, सिर्फ वो जो हो रहा है वो सच लेकर आ जाए दुनिया के सामने, तो वही काफी है हमारे लिए। तो हमें रोकने का, इससे पहले सभी को रोकने का सबसे बड़ा मकसद उनका ये था कि बलूचिस्तान में जो ये अपने जंगी जराइम है, जो फौजी जर्नलों की जंगी जराइम है, वो कभी एक्सपोज ना हो सके। और वो बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया है, जो ब्लैक होल है इंफॉर्मेशन का, उसको उसी तरह रखा जाए। उसके लिए बस एक ही चीज रखा जाए कि बलूचिस्तान में सीपैक है और एकोडिक है, वहां पे इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। इससे पहले अगर सवाल से पहले मैं हमारे चर्च के जिम्मेदार साथी है काजी साहब वो कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अब सवाल आपके सेशन साथियों, ये जो डॉक्टर महारन बलोच साहिबा को कल रियासती निज़ामों ने कराची एयरपोर्ट पर रोका, पाकिस्तान इस पर अफसोस का इजहार करती है और उसे इंतहाई तशवीश है कि कल जब डॉक्टर महारन के साथ के सलूक किया गया तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर महारन साहिबा का नाम ECL में था तो उन्हें आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप उन्हें पहले इन्फॉर्म करते तो शायद वो एयरपोर्ट ना जाती, वो कोर्ट से रुजू करती और अपना कसूर पूछती और उसे डिफेंड करती। लेकिन रियासत ने माजी की तरह डॉक्टर महारन को इस वजह से एयरपोर्ट आने दिया कि वो एयरपोर्ट पर उनकी तजलील कर सके। बिल्कुल उसी तरह के रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, जिब्रान नासिर के साथ जो किया, समीदीन मोहम्मद बलोच साहिबा के साथ जो किया और दीगर इंसानी हकूक के कारकुनों के साथ जो कुछ रियासत करती चली आ रही है। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि बलूचिस्तान और इस मुल्क के दीगर इलाके के जहाँ पर इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, उसका हल सियासी तौर पर निकलना चाहिए और उसका हल सियासी जमातों को निकालना चाहिए, ना कि जंगी असलहे के जरिए, ना कि तशद्दुद के जरिए। साथियों, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 15 डॉक्टर महारन बलोच को, समीदीन मोहम्मद बलोच को ये इजाजत देता है कि वो आज़ादी से किसी भी मुल्क में जाएं, इस मुल्क को छोड़ें और जब चाहें इस मुल्क में वापस आएं। रियासत ने उनसे ये आईनी हक छीना। दोस्तों, रियासत ने खौफ महसूस किया कि डॉक्टर महारन जिस प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं वहां वो बात करेंगी
यानी उन्होंने उनका आइन का आर्टिकल 19 के तहत उनके इजहार राय की आज़ादी का हक भी छीना। डॉक्टर मारहम और समीर दीन मोहम्मद बलोच की गाड़ी को जब रोका गया तो रियासत ने दरअसल आइन को पामाल किया, कानून को पामाल किया, क्योंकि आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। सड़कों पर प्रेस क्लब्स के बाहर गुजरी, कभी भी इन्होंने तशद्दुद का नारा नहीं लगाया। इन लड़कियों ने हमेशा बात सियासी रखी, आईनी रखी, कानूनी रखी, लेकिन जब जब इन पर और इनके साथियों पर तशद्दुद हुआ तो हम समझते हैं रियासत ने और रियासती इदारों ने गैर आईनी और देखिए लकीर बहुत बारीक सी है। ये लोग आपके घरों में हाथ नहीं डालेंगे कि जिनके बच्चों को आप अगवा कर लेते हैं। ये मासूम बच्चे जवान होके आपके गाने नहीं गाएंगे कि जिनके बाप भाइयों को आप उठा के ले गए हैं और फिर उनकी लाशें मिली और कुछ की तो आज तक 15-20 सालों से कुछ नहीं पता। ये बहुत बारीक लाइन है इन पहाड़ों के दरमियान और इन सियासी लोगों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान कि जिनको आप अपना दुश्मन गर्दानते हैं। लेकिन ये आज आपसे बात कर रहे हैं, ये बलोच आज आपसे बात कर रहे हैं, ये नौजवान पश्तून आज आपसे बात करना चाहते हैं, ये सिंधी बात करना चाहते हैं आपसे। लेकिन देखिए ऐसा ना हो कि ये वक्त दूर निकल जाए। आज जो पूरी बलोच कौम मारंग बलोच को सुनती है, आज जो पूरी पश्तून कौम पश्तून को सुनती है, मंजूर को, आज जो यहाँ पर सिंध में सिंध की बेटियां इस अदम तशद्दुद और रवादारी के हवाले से बात कर रही हैं, रियासती तशद्दुद के खिलाफ बात कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ से ये निकल जाए। ये बॉल आपकी कोर्ट में है, यानी रियासत की कोर्ट में है, ये रियासती इदारों के हाथ में है। अब देखना ये है, हम तमाम शहरी इसका इंतजार करेंगे कि रियासत इसका जवाब कैसे देती है, ये सियासी जमातें इसका जवाब कैसे देती हैं। ये इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में जिस तरह समी पिछली चौथी पेशी से हाई कोर्ट जा रही है, जिस तरह इसने डॉक्टर माहरन ने कहा, इसे भी यकीन है कि ना तो इसका पासपोर्ट ये वापस करेंगे ना ये FIR काटेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे ये साथी आखिरी वक्त तक जो है वो कोशिश करेंगे। हम यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की तमाम तहरीकों के साथ जो अदम तशद्दुद पे यकीन रखती हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं, हम उनका साथ देंगे और बबांगे दौड़ देंगे। ये हमारा भी आईनी हक है और ये इन तमाम शहरियों का भी आईनी हक है। बहुत शुक्रिया। हमारा मेरा सवाल ये बलूचिस्तान में स्टेटमेंट का है, इस तरह के वाक़े ये पॉलिटिकल हैं, उनको हिरासत किया जा रहा है, उनको आपकी मेंबर्स को भी हिरासत किया जा रहा है। और दूसरा सवाल ये कि लास्ट जब आपने ट्वीट किया था वो तो ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान की मीडिया पर, जिस तरह के लास्ट नाइट पाकिस्तान की रियासत वहाँ पर मीडिया की तरफ से कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ दें तो बड़े बड़े जर्नलिस्ट को आपसे वजाहत कर रहे थे, उन्होंने भी आपकी सपोर्ट में कुछ नहीं किया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत शेड्यूल का है। देखिए, बलूचिस्तान में राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पीसफुल एक्टिविटी, उसकी बिल्कुल कदर नहीं। तो फोर्थ शेड्यूल उसका एक नया चल रहा है। फोर्थ शेड्यूल में उन लोगों को नाम दर्ज किए गए हैं जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में जो जारी नस्लकुशी है उसके खिलाफ बात करते हैं। इसके साथ साथ 1500 सरकारी मुलाजमीन को बिला सस्पेंड किया गया है और ये कहा गया है बुनियादी तौर पर डराना, ऐसा करना
में शामिल हो गए। वो एक हफ्ते में 3-4 मरतबा सीडीडी के थानों में बुलाया जाता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, उनको हरासा किया जाता है, प्रोफाइलिंग की जाती है और एक प्रोफार्मा के जरिए उनको ये कहा गया है कि वो अपने घर से जब बाहर निकलेंगे तब भी वो पुलिस स्टेशन में बताएंगे, वो कहीं भी जाएंगे, बाजार जाएंगे या शहर छोड़ कर जाएंगे, वो पुलिस स्टेशन को बताएंगे। बाकायदा तौर पर उन पर निगरानी की जा रही है। उस निगरानी का मतलब यह है कि उनको इतना हरासा करना कि वो इसके बाद सियासी एक्टिविटी में कभी भी शामिल ना हो सके। आपका दूसरा सवाल मुझे मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में मीडिया है ही नहीं। पाकिस्तान में मीडिया कारोबार के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान की मीडिया अपने वो जो बुनियादी उसके उसूल है उस पर कभी उन्होंने काम नहीं किया। अगर यही मीडिया होती तो इसको ये नहीं करना चाहिए था कि आज 12 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं, वो आकर मुझसे ही पूछते। कोई भी मीडिया का साथी इतना डेयरिंग होता वो जाकर एफआईए से पूछता कि उन्होंने क्यों मुझे रोका और मेरा नाम किसी ईसीएल में नहीं है। अगर वो एट द फर्स्ट प्लेस मुझे कोई भी मुझे रीजन बता देते कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है, तो मैं एक शहरी होने के लिहाज से मेरे ख्याल से मैं उसी कोर्ट के नोटिस को या कोई भी नोटिस को मेरे हाथ में थमा देते तो मैं उसको लेकर उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल सकती थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और सहाफी हजरात इस पूरे सोसाइटी में किसी को ये नहीं, हम नहीं देख रहे, जो मजबूत मकाम है हम नहीं देख रहे। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अनबायस्ड जर्नलिज्म करें, आप हमारे हक में ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें। हमारे साथ जो जब हो रहा है वो खुद हमारे हक में लिखेगा। हमारी माओ के इतने सालों से इंतजार वो खुद हमारे हक में। हमारे मजलूम जो हमारे भाई हैं उनका खून वो खुद हमारे हक में। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ रियासत से कि हमारी ताकत हमारे लोग हैं। आप जितना हमें रोकने की कोशिश करेंगे हमें यकीन है उतना ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा बलूचिस्तान पर। और स्ट्रॉन्ग मैसेज को आपने तशद्दुद के जरिए भेजा है और वो तशद्दुद जब आप एक ऐसी कौम को 1000 साल से आबाद है जो अपनी जमीन से मोहब्बत रखती है, अपने लोगों से और औरत से मोहब्बत, जिस मुआशरे में औरत का मकाम मर्द के मकाम से काफी गुना ज्यादा है, आप जब उसकी औरत का चादर खींचते हैं तो आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या मैसेज करके कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा साफी या कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जिसने इफेक्टिव तरीके से अनबायस्ड जर्नलिज्म करके इस पूरे सोसाइटी में जो कोलैप्स स्टेट सोसाइटी है मजलूमों की आवाज बनकर उस चीज को सामने लेकर आने। मेरा सवाल है कि 2 दिन कबल राज्यों के बाद अब्दुल्ला का आप इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। ये सवाल हो गया है मेरा सवाल ये कि हम सबको पता है कि पीडीएम पर पाबंदी लगी है, आपके हवाले से बहुत सारी चीजें रियासत जब कहती रहती है, क्या आपको खदशा है कि आने वाले वक्त में बलोच इंटरव्यू कमेटी आप उसकी बहुत सारी आवाज बनी की है उसके ऊपर भी तो पाबंदी लग सकती है? जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में बलूच एक्टिविटी कमेटी से पहले ही ऐसी बहुत सी तंजीमें पीसफुल स्ट्रगल करके आए हैं, उन पर बैन लगाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मौसर तरीके से बलूचिस्तान में इंसानी के पामालियों के खिलाफ बात कर रहे थे। तो पीटीएम पर जो इलीगली एक कर्तन लगाया गया है उसको बैन किया गया है, उसके खदशात न सिर्फ बलूच एक्टिविटी कमेटी बल्कि इस पूरे खित्ते में जो पुरान सियासी कारकुनान है, सियासी तंजीमें हैं, उन पर भी बनती है। क्योंकि विदाउट एनी जवाब के इस तरह एक नोटिफिकेशन के जरिए आप एक ऐसी तंजीम को इसलिए बैन करें क्योंकि वो एक्सपोज कर रही है आपके वार क्राइम्स को, वो एक्सपोज कर रहा है आपके जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं, तो इसके असर मेरे ख्याल से बद से बदतरीन हो सकते हैं। और हमें भी ये खदशा है कि बलूच एक्टिविटी कमेटी क्योंकि पूरे बलूचिस्तान के लिए मौसर आवाज है, एक ऐसी तंजीम है जो बलूचिस्तान में जारी जब को सामने लेकर आ रही है और विक्रम फैमिलीज के साथ है, तो आने वाले वक्तों में हम पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। जिस तरह आज बलूच एक्टिविटी कमेटी से जुड़े हुए 8 शख्स को हरासा किया जा रहा है कोर्ट शेड्यूल के नाम पे, एफआईआर के नाम पे, थ्रेटनिंग के नाम से। और हमारे बहुत से साथी हैं जिस तरह मुझ समेत उनके घर वालों, मेरे भाई का नाम भी कोर्ट शेड्यूल में डाला गया है और हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनके फैमिलीज को हरासा करने के लिए, उनको फैमिली की जाने से प्रेशर देने के लिए उनके घर वालों को कोर्ट शेड्यूल में डालकर उनको तंग किया जा रहा है।
मानो के बताएं कि 28 जुलाई को राजीव मुंशी का गया वादन में और इस तरह तो सूरत हाल वादन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो वादन आने वाली सड़कों पर जो सूरत हाल जो आई दुनिया के सामने, उसके जो अब तक की बलोच थी कि सबसे बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है राजीव मुंशी के इनकार। राजीव मुंशी के इनकार के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसको आप किस तरह देखिए, कोई भी सियासी प्रोग्राम उसकी असरात और नताइज सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उसके असरात देर होते हैं। और राजीव मुंशी वो तहरीक थी जो महदूद नहीं रही, जिसकी वजह से ये तहरीक ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि इंटरनेशनली भी वॉइस बन चुकी है पूरे बलूचिस्तान में बलोच को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हम समझते हैं ये बलोच यकजहती कमेटी और इससे जुड़े हुए हर कारकुन की कामयाबी, हर उस शख्स की कामयाबी है जिसने जबर के बावजूद अपने जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको नहीं छोड़ा। अपने लिए बात की, अपने कौम के लिए बात की, और उसके बाद से बलोच यकजहती कमेटी और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से और तवानातर तरीक़ेकार से उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है। और हमें आगे भी जाकर बलोच यकजहती कमेटी को इससे ज्यादा सपोर्ट और अलायंसेस मिल सकते हैं। डॉक्टर मारूफ, ये बताइए कि 26 अगस्त के वाक़े के बाद बलूचिस्तान में रिवॉल्यूशन के हवाले से बातें चल रही हैं, तो क्या इस वक्त बलूचिस्तान में बाकी में हिस्सा मिलता है कि जहाँ पर कुछ इलाकों में कोई रिवॉल्यूशन शुरू किया गया है, इस हवाले से? देखिए, मैं समझती हूँ बलूचिस्तान में ऑपरेशन के लिए 26 अगस्त का वाक़या का जवाब देना ये गैर जरूरी है, क्योंकि हम इंसानियत के उस पर काम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में वक्तन फवक्तन ये ऑपरेशन जारी है जिसको नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन इन वाक़यात के बाद से एक जवाब फराहम किया गया, जिस तरह फौज शेड्यूल की जो एपिक्स कमेटी, जिस पर खुद पार्लियामान के नेशनल असम्बली ने भी बात की कि वो इसकी कोई लीगल या वो नहीं है कि एपिक्स कमेटी बुलाई जाए और वो फैसला करे। तो इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान में जो एक लॉलेसनेस है उसको बाकायदा तौर पर लीगलाइज किया जा रहा है, उसको बाकायदा तौर पर जो हर फर्द है उसकी तमाम राइट्स को सलब करने के लिए इस वाक़े को जवाब फराहम किया जा रहा है। बलूचिस्तान में आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फौजी ऑपरेशन चल रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको एयरपोर्ट पर रोका गया और आपका पासपोर्ट की तो आप अगर ऐसा तो मायूस है, तो आगे का लाएअमल आपका क्या होगा, किसका दरवाजा आएंगी और ये पासपोर्ट आपको कैसे दोबारा करेगा? और रियासत से भी आपकी कोई उम्मीद नहीं है, औरतों से भी आप मायूस हैं, साथियों से भी आप मायूस हैं कि वो कवरेज नहीं देते हैं। हालांकि सैकड़ों साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की नजराने दिए, माशरे ने कितना उन साथियों से कत्ल के इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाई, कितने एहतजाज हुए। मेरा ताल्लुक केडीएम न्यूज से जान मोहम्मद महर को 1 साल से जायद कत्ल वो हो गया है। माशरा जिसके लिए हम आवाज करते हैं या होता है कमाल से चले जाते, तो आपकी उम्मीद किससे है कि और लाएअमल क्या है? देखिए, जब हमने साथियों पर बात की तो हम मीडिया को एज इंस्टीट्यूशन डील करते हैं, उसमें मैं फर्क पर बात नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्होंने वाकई तौर पर चैलेंज किया और अपनी जिंदगियों की भी कुर्बानी दी, अपने प्रोफेशन के साथ वो ऑनेस्ट रहे। लेकिन हम जब भी बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि मीडिया एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। हम सबको शायद नहीं पता है, लेकिन स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है मीडिया। हाँ, जो स्टेट है एग्जिस्ट करते हैं, हम तो एज स्टेट कभी उस क्राइटेरिया में आए नहीं है, तो हम जब भी बात करते हैं तो उस पिलर की बात करते हैं जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अ स्टेट। वो एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ चंद अफराद, एलिट्स और जर्नल्स जो है ना मीडिया को चलाते हैं। इसी वजह से हम समझते हैं कि स्टेटमेंट्स भी एक है। और मुजम्मत पर मैं एक बात करूंगी कि यहाँ मैं मुजम्मत करती हूँ, साथ में उनकी नॉलेज पर मुजम्मत करती हूँ कि उनकी नॉलेज इतनी वीक हो गई है कि वो वही सवाल बार बार रिपीट करके पूछते रहते हैं। अपने उस पर थोड़ा सा आप प्लीज काम करें। और हम शायद कुछ उन लोगों से मायूस हो सकते हैं जो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों से मायूस नहीं है। हम उस हर फर्द से मायूस नहीं है जो इंसानियत पर यकीन रखता है, जो इंसानों के इस बंदर बांट पर यकीन नहीं रखता,
कि समी जिसके नाम के आगे बलोच लिखा है, मारम जिसके नाम के आगे बलोच लिखा है, सिर्फ वही गाड़ी रोकी जाएगी। FIA के अफसरान, जब मैं एयरपोर्ट में एंटर होती हूँ तो इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी के पास जाकर नहीं पूछते कि अपना पासपोर्ट दिखाएं, सिर्फ मुझसे पूछा जाता है कि अपना पासपोर्ट दिखाएं। जो रवैया वेस्ट ने किया अफ्रीकन के साथ, उनको रंग की बिना पर सालों तक गुलाम रखा, मेरे ख्याल से बलोच तो अब तक अपनी हैसियत को भी नहीं जानता है कि वाकई वो स्टेट का शहरी है या गुलाम है। उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो शायद मैं सेकेंडरी सिटीजनशिप का भी मैं इसको इख्तियार नहीं देती हूँ, कि जिसकी वजह से उसकी शिनाख्त के नाम पर, उसके पहनावे के नाम पर उसको टारगेट किया जाता है। और यही ये मान लिया गया है कि बलूचिस्तान में जो कौमियतें हजारों साल से यहाँ आबाद हैं, तो जीने का इख्तियार नहीं है, उनको जाहिर करार दिया गया है। इसलिए एक इजी वे है ताकि अपनी पॉपुलेशन को ये बावर कराया जाए, क्योंकि ये इंसान है ही नहीं तो इनके हकूक भी सलब किए जाएंगे, इनके वसाइल भी लूटे